مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ میں بھی یہی جاننے کے لیے آیا ہوں۔ یا انسان کہیں کے شفا؟ شفا یہ تھپڑ مجھے تمہارے منہ پہ بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا۔ ہوش میں آؤ شفا۔ ہوش میں لانے کے لیے اس کو یہ تھپڑ مارا میں نے، بلکہ مجھے آفس میں ہی تمہارے منہ پہ تھپڑ مار دینا چاہیے تھا۔ مجھے بتاؤ کہ آفس میں ہوا کیا تھا؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس کو عاقب سے بات کرتے ہوئے۔ کیا سنا ہے؟ یہ گھٹیا انسان عاقب کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ کرتا ہے یہ مجھے امپریس کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ What؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا بولے جا رہی ہو تم؟ بکواس بند کرو اپنی، جھوٹ مت بولنا۔ میں تمہیں کہتی تھی نا کہ میں اس کے ساتھ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوں، کہا تھا نا میں نے تمہیں کہ مجھے اس سے اچھی وائبز نہیں آتی۔ اس کی سچائی آج میرے سامنے آ گئی ہے۔ یہ عاقب سے مجھ سے شادی کرنے کی بات کر رہا تھا۔ سنہری گھڑیال۔ گھنے جنگل کے پار ایک ویران جزیرے پر ایک عظیم سنہری گھڑیال کھڑا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ وقت نہیں بلکہ انسان کی نیت کو ناپتا ہے۔ ہر 100 سال بعد ایک شخص کو وہاں پہنچنے کا موقع ملتا تھا۔ 17 سالہ ارحم نے اس پراسرار جگہ کا سفر شروع کیا۔ راستے میں اسے ایک کشتی الٹی ہوئی ملی۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر 3 مسافروں کو بچایا۔ آگے ایک بیمار بوڑھی عورت ملی جسے وہ قریبی گاؤں کے طبیب تک لے گیا۔ پھر ایک یتیم بچہ ملا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ارحم نے اپنا سارا سامان اسے دے دیا۔ کئی دن بعد وہ جزیرے پر پہنچ گیا۔ سنہری گھڑیال خاموش کھڑا تھا۔ جیسے ہی ارحم اس کے قریب گیا، گھڑیال کی سوئیاں خود بخود چلنے لگیں۔ اس کے سامنے ایک دروازہ کھلا جس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہاں صرف ایک شفاف آئینہ رکھا تھا۔ آئینے کے نیچے سنہری حروف میں لکھا تھا، وقت تمہاری عمر نہیں گنتا، وہ صرف یہ گنتا ہے کہ تم نے اپنے لمحوں سے کتنی زندگیاں روشن کیں۔ اسی لمحے آئینے میں ارحم نے وہ تمام لوگ دیکھے جن کی اس نے راستے میں مدد کی تھی۔ ان کے چہروں کی دعائیں اور مسکراہٹیں کسی بھی خزانہ سے زیادہ قیمتی لگ رہی تھیں۔ گھڑیال کی گھنٹی بجی اور پورا جزیرہ روشنی سے بھر گیا۔ ارحم واپس اپنے گاؤں آیا اور اس نے ہر دن کو علم، خدمت اور انصاف کے لیے وقف کر دیا۔ برسوں بعد لوگ اس کے کاموں کو یاد کرتے تھے، نہ کہ اس کی دولت کو۔ جب کسی نوجوان نے پوچھا، کیا سنہری گھڑیال واقعی جادوئی تھا؟ ارحم مسکرا کر بولا، ہاں، مگر اس کا جادو وقت روکنے میں نہیں، انسان کو وقت کی اصل قیمت سمجھانے میں تھا۔ سبق: زندگی کی لمبائی اہم نہیں، بلکہ یہ اہم ہے کہ آپ اپنے وقت سے کتنی بھلائی اور کتنی امید دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ سنہری گھڑیال۔ گھنے جنگل کے پار ایک ویران جزیرے پر ایک عظیم سنہری گھڑیال کھڑا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ وقت نہیں بلکہ انسان کی نیت کو ناپتا ہے۔ ہر 100 سال بعد ایک شخص کو وہاں پہنچنے کا موقع ملتا تھا۔ 17 سالہ ارحم نے اس پراسرار جگہ کا سفر شروع کیا۔ راستے میں اسے ایک کشتی الٹی ہوئی ملی۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر 3 مسافروں کو بچایا۔ آگے ایک بیمار بوڑھی عورت ملی جسے وہ قریبی گاؤں کے طبیب تک لے گیا۔ پھر ایک یتیم بچہ ملا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ارحم نے اپنا سارا سامان اسے دے دیا۔ کئی دن بعد وہ جزیرے پر پہنچ گیا۔ سنہری گھڑیال خاموش کھڑا تھا۔ جیسے ہی ارحم اس کے قریب گیا، گھڑیال کی سوئیاں خود بخود چلنے لگیں۔ اس کے سامنے ایک دروازہ کھلا جس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہاں صرف ایک شفاف آئینہ رکھا تھا۔ آئینے کے نیچے سنہری حروف میں لکھا تھا، وقت تمہاری عمر نہیں گنتا، وہ صرف یہ گنتا ہے کہ تم نے اپنے لمحوں سے کتنی زندگیاں روشن کیں۔ اسی لمحے آئینے میں ارحم نے وہ تمام لوگ دیکھے جن کی اس نے راستے میں مدد کی تھی۔ ان کے چہروں کی دعائیں اور مسکراہٹیں کسی بھی خزانہ سے زیادہ قیمتی لگ رہی تھیں۔ گھڑیال کی گھنٹی بجی اور پورا جزیرہ روشنی سے بھر گیا۔ ارحم واپس اپنے گاؤں آیا اور اس نے ہر دن کو علم، خدمت اور انصاف کے لیے وقف کر دیا۔ برسوں بعد لوگ اس کے کاموں کو یاد کرتے تھے، نہ کہ اس کی دولت کو۔ جب کسی نوجوان نے پوچھا، کیا سنہری گھڑیال واقعی جادوئی تھا؟ ارحم مسکرا کر بولا، ہاں، مگر اس کا جادو وقت روکنے میں نہیں، انسان کو وقت کی اصل قیمت سمجھانے میں تھا۔ سبق: زندگی کی لمبائی اہم نہیں، بلکہ یہ اہم ہے کہ آپ اپنے وقت سے کتنی بھلائی اور کتنی امید دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔
सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी ज़िंदगियाँ रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी ख़जाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी ज़िंदगियाँ रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी ख़जाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी ज़िंदगियाँ रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी ख़जाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया।
बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली, जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला, जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी ज़िंदगियाँ रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी ख़जाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली, जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला, जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी ज़िंदगियाँ रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी ख़जाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली, जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला, जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था,
वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी जिंदगियां रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी जिंदगियां रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी जिंदगियां रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया।
फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी ज़िंदगियाँ रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी ख़जाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी ज़िंदगियाँ रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी ख़जाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी ज़िंदगियाँ रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी ख़जाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था।
उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी ज़िंदगियाँ रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी ख़जाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी ज़िंदगियाँ रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी ख़जाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ़ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी ज़िंदगियाँ रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी ख़जाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा,
क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली, जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला, जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी जिंदगियां रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली, जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला, जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी जिंदगियां रोशन की। उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली, जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम बच्चा मिला जिसके पास खाने को कुछ ना था। अरहम ने अपना सारा सामान उसे दे दिया। कई दिन बाद वो जजीरे पर पहुंच गया। सुनहरी घड़ियाल खामोश खड़ा था। जैसे ही अरहम उसके करीब गया, घड़ियाल की सुइयां खुद ब खुद चलने लगी। इसके सामने एक दरवाज़ा खिला, जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ सिर्फ एक शफ़ाफ आईना रखा था। आईने के नीचे सुनहरी हुरूफ में लिखा था, वक्त तुम्हारी उम्र नहीं गिनता, वो सिर्फ ये गिनता है कि तुमने अपने लम्हों से कितनी जिंदगियां रोशन की।
उसी लम्हे आईने में अरहम ने वो तमाम लोग देखे जिनकी उसने रास्ते में मदद की थी। उनके चेहरों की दुआएं और मुस्कुराहटें किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती लग रही थीं। घड़ियाल की घंटी बजी और पूरा जजीरा रोशनी से भर गया। अरहम वापस अपने गांव आया और उसने हर दिन को इल्म, खिदमत और इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद लोग इसके कामों को याद करते थे, ना कि इसकी दौलत को। जब किसी नौजवान ने पूछा, क्या सुनहरी घड़ियाल वाकई जादुई था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर उसका जादू वक्त रोकने में नहीं, इंसान को वक्त की असल कीमत समझाने में था। सबक: जिंदगी की लंबाई अहम नहीं, बल्कि ये अहम है कि आप अपने वक्त से कितनी भलाई और कितनी उम्मीद दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनहरी घड़ियाल। घने जंगल के पार एक वीरान जजीरे पर एक अजीम सुनहरी घड़ियाल खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो वक्त नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को नापता है। हर 100 साल बाद एक शख्स को वहां पहुंचने का मौका मिलता था। 17 साला अरहम ने इस पुरस्कार जगह का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक किश्ती उल्टी हुई मिली। इसने अपनी जान खतरे में डालकर 3 मुसाफिरों को बचाया। आगे एक बीमार बूढ़ी औरत मिली, जिसे वो करीबी गांव के तबीब तक ले गया। फिर एक यतीम